I now request CMD CSL and Mr. Arun Sinha to kindly exchange the MOU signed between DCI and IHC. This is the MOU signed between CSL and IHC for the construction of high capacity dredgers in India. Thank you, sir. Thank you very much. May I now request the Honorable Ambassador of the Netherlands to India to kindly felicitate the gathering. Thank you so much, Honourable Minister, distinguished guests in the Netherlands as well as in India. Is the mic working? Yes, sir. Yes, sir. I think it's a very, very happy moment today, and I think this MOU illustrates a wonderful relationship between the Netherlands and India. But let me first also congratulate Indian Cochin Shipyard, DCI and IHC Holland, because they of course are the most important players here today. I think as was said earlier, the Netherlands and India share a very long history, but we also share, both countries, a huge coastline. Of course, India is so much bigger than the Netherlands, but relatively we both have huge coastlines. So the blue economy for both of our countries is very, very important, and I think it's a very relevant theme topic to collaborate together and to increase our collaboration. And I think there's a lot of potential. I very much understand the whole Make in India movement in India. It's, I think, key for development in India, but it's also key, I think, for strengthening competences of India to be a strong competitor in global markets. And I think global collaboration is, I think, very helpful in the Make in India movement. And I think the Netherlands and the Dutch companies, Dutch institutions are looking very much forward to work closely together with India, also in this Make in India movement. And again, I think this MOU is a wonderful illustration of this collaboration. And so we're looking very much forward to increase this collaboration, to work together on the challenges, but mostly also on the opportunities we all face. So thank you so much for being here, and I wish also the collaboration between India Cochin Shipyard, DCI and IHC Holland lots and lots of success, and wherever we can support from the embassy point of view or the Dutch government, we are happy to do so. Thank you so much. Bahut Dhanyavad. Thank you very much, sir, for the best wishes for the success of this endeavor. May I now request our Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways, Shri Mansukh Mandaviya to kindly. Excellency Ambassador Mr. Martin van den Berg, Economic Counselor Mr. Jose, officers from both countries, media persons, ladies and gentlemen, नमस्कार। आज जो MOU साइन हुआ है वो इंडिया की आत्मनिर्भर भारत की मूवमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सालाना इंडिया 1500 से 2000 करोड़ का ड्रेजिंग करवाते हैं और कई कैपिटल ड्रेजिंग होता है, और जब ड्रेजिंग के लिए ड्रेजर चाहिए, ये बिग साइज़ का ड्रेजर इंडिया में नहीं बनता था और ड्रेजर भी बाहर से आते थे। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन को प्रोक्योर करना था तो भी वो बाहर से प्रोक्योर करके लाते थे, और हम जब ड्रेजिंग के लिए बीड करते थे तो फॉरेन ड्रेजर आके बीड करते थे। मतलब इंडियन कोस्टल लाइन पर फॉरेन से ड्रेजर आते थे और यहाँ ड्रेजिंग होते थे। अभी
जो आज के दिन में MOU साइन हुआ है उसमें 3 चीज़ महत्वपूर्ण है। एक, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कुल मिला के ये बड़ा ड्रेजर है, उसको ट्रेलिंग सेक्शन हॉपर ड्रेजर कहते हैं। ये ड्रेजर की कॉस्ट होती है 800 करोड़ रुपीस। ये अभी इंडिया में बनेंगे। कोची शिपयार्ड और डेनमार्क की एक कंपनी रॉयल IHC ये दोनों कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इंडिया का शिपयार्ड आज वर्ल्ड क्लास बना है, वहाँ से टेक्नोलॉजी आएगी और इंडिया की कंपनी उसको बनाएगी, तो 800 करोड़ रुपीस वो इंडिया में ही रहेंगे। मेक इन इंडिया होगा। इंडियन ड्रेजिंग कॉरपोरेशन के लिए जो ड्रेजिंग बनेगा और इंडिया में बनेगा, इंडियन कंपनी के पास रहेगा और इंडियन कंपनी बनाएगी। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज देश में बड़े आवश्यक है, लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट भी इंडिया में फुलफिल होती है, इसलिए उसका एक महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट भी बनता है। ये बड़ा ड्रेजर इंडिया में बनेगा। दूसरा, काल एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया में कोची शिपयार्ड विक्रांत अभी एक बड़ा कैरियर जो वहाँ से प्लेन, नेवी के प्लेन उसके ऊपर लैंड कर सके और उसको ले जा सके, ऐसी क्षमता वाला वो कोची शिपयार्ड ने बनाया। आज के दिन में वो बन के 6 महीने में 8 महीने में रेडी होने वाला। ये हमारे लिए मेक इन इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धि है। दूसरा, अगले दिनों में इंडियन नेवी ने कॉम्पिटिटिव बिड से, नहीं कि इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनी को ऑर्डर दे दिया भारत सरकार ने फर्स्ट रिफ्यूजल से, ऐसा नहीं। इंडियन कंपनी कोची शिपयार्ड इंडियन कंपनी नेवी ने एक टेंडर निकाला था और 10,000 करोड़ का मिसाइल को ले सके और मिसाइल को ऑपरेट कर सके ऐसा वेसल्स 10,000 करोड़ का 6 वेसल्स के लिए इंडियन नेवी ने कोची शिपयार्ड को ऑर्डर दिया है। हमारे लिए दूसरी सिद्धि है। जो पहले ये ऑर्डर जाता था बाहर, हम नहीं बना सकते थे, आज ये भी वेसल्स इंडिया में बनेंगे। तीसरा, अभी हम इंडिया में, मैं कई बार बोलता हूँ कि ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी और नहीं है और नहीं होने वाली है। आवश्यकता है उसको चैनलाइज करने की। ये चैनलाइज कोची शिपयार्ड के माध्यम से जो किया है उसका एक नतीजा ये निकला, 2-3 महीने पहले दुनिया में सबसे पहला इलेक्ट्रिक से और नो मैन, विदाउट मैन, कोई उसको ऑपरेट करने वाला नहीं, ऑटो ऑपरेट करके इलेक्ट्रिकल वेसल्स, 2 वेसल्स का ऑर्डर नॉर्वे से इंडिया को मिला है। और कोची शिपयार्ड दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक से चलने वाला 9 मैन वेसल्स कोची शिपयार्ड बनाएगी। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, इंडिया के लिए वो गौरव है। और अगले दिनों में हमारे जो पार्टनर कंट्री है जैसे नेदरलैंड, ये सब कंट्री के साथ बायलैटरल कोऑपरेशन के साथ, कंपनी टू कंपनी कोऑपरेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और देश को एक शिपिंग सेक्टर में, मैरीटाइम सेक्टर में हम नई ऊंचाई की दिशा में ले जा रहे हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you.